This episode of VoiceOver पर चर्चा is powered by voicesbazaar.com, India's premium audio agency. Yeah, I always wanted to be an actor. It's very difficult to say exactly genesis कब हुआ था, but I think I was about 6 years old when I saw my first film in the movie theaters. I remember it was Ajuba, Amitabh Bachchan, Rishi Kapoor on the big screen, and I came back home and I said that's all I want to do. रघु ने तो बहुत कमाल कहानियां सुनाई हमको. Raghu is a Jamna Pari. You should know this. Oh, I was not doing this. रघु पढ़ा है एक जमुना पार के कॉलेज में. Okay. And he said, अरे भाई ये तुमको क्या पता है जमुना पार के बारे में, मेरे कॉलेज में ऐसा होता था वैसा होता था. और the stories are insane. और AI इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि मतलब अगर हमको लगे कि नहीं ये तो 5-10 साल तक कुछ नहीं कर पाएगा, आप गलत फहमी में. AI will take over in the next 1, maybe 2 years. So welcome to another super special episode of VoiceOver Par Charcha. So in this episode, we have a seasoned voice artist who has given his voice to n number of documentaries, commercials, the list is too big, and of course, an actor. He has been a part of movies like Major, Razi, Operation Valentine, Razakar, and the list goes on. And few of the web series like Rakshak, India's Braves, and of course, recently seen in Jamna Par. So, to my viewers, to my listeners, to my subscribers, it's a great honor, it's a pride, it's a privilege to have Mr. Sandeep Ved on VoiceOver पर चर्चा. So, sir, आपका बहुत 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 स्वागत है VoiceOver पर चर्चा में. Hey, thank you, Ash. Thanks for having me. Pleasure. First of all, I would like to ask you this question कि आपकी शुरुआत कैसे हुई परफॉर्मिंग आर्ट्स में? एक्टिंग में पहले हुई, वॉइस एक्टिंग में पहले हुई, how it all started? So, over to you. Yeah, I always wanted to be an actor. It's very difficult to say exactly genesis कब हुआ था, but I think I was about 6 years old when I saw my first film in the movie theaters. I remember it was Ajuba, Amitabh Bachchan, Rishi Kapoor on the big screen, and I came back home and I said that's all I want to do. And I remember I used to be glued to the TV screen throughout my vacations, matlab 12-14 hours watching reruns. I just loved watching content. Loved watching people act and be different people on screen, you know. So the first opportunity I got, I took it. I think I was in my intermediate second year, that's 12th. I joined a acting workshop and I did theater with the same group for about 6-7 years. Okay. Yeah. और वॉइसिंग की जर्नी भी उन्हीं के साथ शुरू हुई. मेरे जो गुरु हैं उनका नाम है विनय वर्मा, वो हैदराबाद के हैं और वहाँ पर वो एक्टिंग और वॉइसिंग दोनों सालों से करते आए हैं और सिखाते भी हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं. उनके साथ I toured the country with all the plays that we did, and I remember it was with him that I first entered a recording studio. तो हमको ना कुछ स्टूडेंट्स को वो साथ में लेकर गए थे एक स्टूडियो में. He was recording for a documentary of sorts, और वो लीड कैरेक्टर कर रहे थे और हमको ना वो नीचे बैठा दिया था उन्होंने, जमीन पर बैठ जाओ बस साथ में और देखो कैसे होता है. And I saw him do it and I was like, ये तो आसान है, हो जाएगा. And I remember him looking at me and saying, बाबू जब माइक पर आओगे ना हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे, सबसे नहीं होता ये. I said, try me. And thankfully soon enough I got an opportunity. It was a small character in this feature film called Tango Charlie. Okay. Crowd dubbing की थी मैंने वहाँ पे. और crowd dubbing हाँ करते करते मजा आने लगा and I took to it like fish takes to water. And I remember एक ऐसा दिन था जब हमें बस वो बुला लेते थे और फिर बैठा देते थे कि 3 घंटे क्राउड डबिंग की, फिर कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट आ गया तो उससे 2 घंटे डबिंग करवा ली, हम बाहर बैठे. तो ऐसा करते करते there was this one time I reached there at like 1 in the afternoon and left at 4 a.m. the next morning. And on that day there was this one particular character which had a few lines and it was a very emotional scene and they were making someone else do it in front of me. So while his voice was matching the character, his performance was not. So I told the associate director के मंजूर भाई एक चांस मिलेगा क्या ये करने का? And he looks at me and says, नहीं संदीप तुम्हारी वॉइस नहीं जाएगी. I said भाई एक चांस दे दो. He said ठीक है बाद में देखते हैं. रात के 1-1:30 बज रहे थे. Everyone was very tired, so they all wanted a break. And मंजूर भाई और उस रिकॉर्डिंग रूम में 5-6 लोग थे, क्राउड डबिंग जैसे होती है. And I remember he just looks at me and says, संदीप एक चांस है, करेगा क्या? I said करूँगा. रात के 1:30 बजे मैं माइक पर जाके I gave the best performance of my life until then. And मैं रोया और परफॉर्मेंस किया. गुजराती एक्सेंट में बोलना था तो थोड़ा सा गुजराती एक्सेंट भी दिया मैंने. And that guy was floored. He was like, dude, रात के 1:30 बजे ये लड़का परफॉर्म कर रहा है और हालांकि मेरी वॉइस जेन्युइनली उस लड़के से कम ही मैच कर रही थी उस कैरेक्टर पर, बट माय परफॉर्मेंस वाज सो गुड दैट द डायरेक्टर लाइक्ड इट
and we eventually used my voice in the film. And later Can on, we get a glimpse of that little bit line of that character? अगर आपको याद हो वो अरे हाँ, it कैसा? was a scene where Bobby Deol shoots someone in the Gujarat riots. Okay. And इस लड़के का बाप गलती से मर जाता है. Yes, Tango He was Charlie shooting a guy. riot Right, here, right, right. but इस लड़के Right, का right. बाप मर जाता है. एंड फिर वो बॉबी देओल उस पर्टिकुलर मृतक इंसान के डेथ सेरेमनी पर या तीसरे पर जाता वहां है. पे जाते हैं. यस यस. और वो लड़का रो रहा होता है, उसका बेटा, और वो कहता है पिताजी की कोई गलती नहीं थी, ऑफिस जा रहे थे, गोली मार दी. So this was the line, and I'm Yes. sure there were a few others, but the performance that came out at that point was so good that a couple of days later the director himself came and dubbed with me, Mani Shankar. And the co-director told him कि सर ये लड़का बहुत अच्छा है, इसके साथ आप ट्राई कीजिए. And they made me dub for like छोटे मोटे इंसिडेंटल्स और क्राउड मिला के कुछ 20-25 कैरेक्टर्स के लिए मैंने आवाज दी उस फिल्म में. ओके. 12 दिन का काम किया था, मुझे याद है. और 20-25 कैरेक्टर्स की वन लाइनर, वन वर्ड, हाफो, दौड़ो, लड़ो, इस सबको मिला के वो जो 20-25 कैरेक्टर्स और 10-15 दिन की जो मेरी वर्कशॉप हो गई, वो उसने मुझे आर्टिस्ट बना दिया. And I knew that I can voice like nobody's business. And I used to always think that voicing is such a simple job, yaar. Why can't people do it? Or why can't everybody? I thought everybody can do it. But when I saw people struggle with voicing, when I saw, I took a few friends, yaar tum bhi kar lo, and they couldn't. And I till date, when I see people struggle with, some actors are Yes. such good actors, but when it comes to dubbing for themselves, they're unable to do so. So I understand that voicing सबके बस की बात नहीं है. सबके बस की And- बात नहीं. राइट. Yeah, and it's not like मैं अपना ट्रम्पेट बजा रहा हूँ, बट वो एक स्किल है, वो एक गिफ्ट है. आपको अगर मिला है तो फिर उसका आप अच्छे से इस्तेमाल कीजिए. डेफिनेटली. एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, जैसे आपने जिक्र किया दैट इनिशियली यू लर्नड इन हैदराबाद. Yes. आपकी मतलब आपका ब्रॉट अप हैदराबाद में हुआ है. Yes, I'm born and raised in Hyderabad. Yes. Okay, and then it like what year you came to Mumbai? Like I came to Bombay in 2012. 2012. Okay, and you mentioned about this movie Tango Charlie. उससे Tango आपकी Charlie, yes. शुरुआत हुई थी. So Yeah, I think this Bobby was way Deol, back- Ajay Devgan was also a part Ajay of it, Devgan, right? Bobby Deol, Yes, that's yes, correct, yes, yes. Right, right. So that was way back in 2005, I think, 2004, 2005. And it's not like I was actively voicing after that, but then, my guru knew कि अगर डबिंग करवानी है तो संदीप से करवा लीजिए, वो अच्छे से कर लेगा. So I remember there was this one friend of ours who had made a short film for a festival, and she wanted someone to dub for a 50-year-old guy. And Okay. he said, Sandeep se karwa lo. And Jennifer, I remember her name, and she was like, Sandeep? I was all of 20. He said, nahi, Sandeep modulate kar lega. And I remember, and I went and I spoke like an old guy. She was floored. She was like, अरे तुम Wow. ये भी कर लेते हो? I said, मुझे लगा नहीं था कि मैं करूँगा, लेकिन हो गया तो वो बस वो हो जाता है यार. I would say that I'm not formally trained in voicing or anything as such, apart from a 3-week voice workshop that I had done. मैंने बाकी सारा काम on the job ही सीखा है. ऑन द जॉब, और थोड़ा मतलब हाव भाव करके वो मॉड्यूलेशन भी अपने अंदर एक धीरे धीरे डेवलप होती चली जाती है. हाँ. And I think being an actor really helps. That, Yes, as of an course, actor, of when you course. know how to emote, where to emote, it's a very symbiotic process. My voicing talents help my acting, and my acting helps my voicing, emoting. They support each other in Yeah, that they way. really support each other. राइट राइट राइट. सो उसके बाद फिर और अपॉर्चुनिटीज आती चली गई. वॉइस अभी स्पेसिफिकली अगर हम वॉइस एक्टिंग की बात करें, वॉइस एक्टिंग एंड वॉइस ओवर्स जैसे. Yeah, see, I'll tell you what. जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ था ना, तो मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने बोला था कि तेरी वॉइस बहुत अच्छी है, कीप फोकसिंग वॉइसिंग में, you'll be able to really do well. And I kept saying, यार मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी है, मैं यहाँ पर प्योरिस्ट एक्टर बनकर आया हूँ. बट 2014 आई रिमेंबर, एक वॉइस कोऑर्डिनेटर है यहाँ पर, विजय राघवन नाम है उनका, लैंग्वेज डब्स करवाते हैं. तो उनसे मैं किसी और रीजन से मिला था, और उन्होंने मुझे बहुत कमाल की कहानियां सुनाई थी किशोर कुमार की और ये वो. और अब आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपके पास कुछ काम तो है नहीं पहले 6, 8, 10 महीने, तो उनको मैं हर 2-3 महीने में एक बार बस हाय हेलो कर दिया करता था. सो 2014 की बात है ये. मैंने एक बार उनको ऐसे ही कॉल किया कि रे सर, मैंने अभी किशोर कुमार का एक वीडियो देखा, आपकी वो वाली कहानी याद आई, तो मैंने सोचा आपको हेलो बोल दूं. सो ही गोज, अच्छा ठीक है, सुन तू सिंधी है ना? ऐसे, हाँ सर मैं सिंधी हूँ. सिंधी बोलता है तू? हाँ सर बोल लूंगा, स्क्रिप्ट होगी तो बोल लूंगा. आ जा, ये साउंड बार में. I reached there and I come to know that
2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई थी, मोदी जी आए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री की जन धन योजना शुरू की थी। जन धन योजना की जो एड्स थी वो हिंदी में बनी थी और जैसे कि आप जानते होंगे लेकिन ऑडियंस को शायद नहीं पता हो, सारी बड़ी एड्स जो बनती हैं वो 11 रीजनल लैंग्वेजेस में डब होती हैं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, पंजाबी, बंगाली, ओरिया, असमीज, यू नो द वर्क्स। सिंधी में कभी डब नहीं हुआ था। उस समय मोदी जी के ऑफिस से ये ऑर्डर आया था कि ये एड जो है वो सिंधी में भी डब होनी चाहिए। तो सिंधी, देखो बाकी सारे लैंग्वेजेस का ना एक फ्रेमवर्क बना हुआ है इस शहर में। तमिल आर्टिस्ट हैं, तेलुगु आर्टिस्ट हैं, बंगाली, पंजाबी, ओरिया सारे हैं, जिनके सुपरवाइजर्स भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, अलग अलग एज ग्रुप में हैं। सिंधी का था नहीं कुछ। सो ही वाज ट्राइंग टू असेंबल अ टीम of Sindhi artists, and I just happened to call him at the right moment where he needed a Sindhi voice. I reached. I remember in the next 3 days I dubbed for like 5-6 films, and then he said, "तू तेलुगु भी करता है ना?" I said, "हाँ सर, मुझे तेलुगु भी आती है." हैदराबाद अब यस रहे हैं, राइट। क्योंकि मैं हैदराबाद बेस्ड था तो मुझे ना पूरी तेलुगु नहीं आती थी, मुझे बस 50% की जितनी आती थी, 50-60%। बट सुपरवाइजर्स होते हैं, वो आपकी मदद कर देते हैं और आप तेलुगु में भी डब करना शुरू करते हो। वो दिन था और आज का दिन है, मैंने कुछ 1200 एड्स तेलुगु में डब कर लिए। और ओवरऑल आई थिंक माय काउंट हैज क्रॉस 2500। आई हैव डब फॉर लाइक 2500 प्रोजेक्ट्स, एड फिल्म्स, कॉर्पोरेट फिल्म्स, प्रोडक्ट डेमोस, पॉडकास्ट, इंग्लिश, हिंदी, सिंधी एंड तेलुगु। ये सिंधी अनफॉर्चुनेटली उसके बाद मैंने कभी सिंधी में डब नहीं। अच्छा, सिंधी उसके बाद नहीं किया। हाँ, बट वैसे बहुत रेयर होता है वैसे सिंधी का, जो मी बीइंग अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट आई कैन कोरिलेट विद दैट, क्योंकि हम कहीं सुनते हैं, कहीं जैसे रिक्वायरमेंट होती है, तो सिंधी का इतना नहीं सुना था, तो होता होगा डब होता होगा, बट नॉट लाइक तेलुगु एंड ऑल। जैसे मैं 3 लैंग्वेजेस में करता हूँ, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, तो ये मैं आई कैन कोरिलेट टू दैट। सो उसके बाद जैसे आपने 2014 का जिक्र किया, तो मैं कह सकता हूँ एक्टिंग एंड वॉइस एक्टिंग में उस लिहाज से कह रहा हूँ क्योंकि 2014-15 के बाद एक चीज है जिसका मतलब धीरे धीरे ये नाम सुनाई देने लग गया, एंड दैट इज ओटीटी। यस, ऑफ कोर्स। तो कहीं ना कहीं आपके एक्टिंग और वॉइस एक्टिंग में दोनों में यू वुड हैव बीन loaded with all opportunities, like, you know. Yeah, a lot of opportunities came by. I mean, I started off with a lot of ads and a lot of language ads. Ads से मैंने शुरुआत की, बहुत ज़्यादा ads मैंने लैंग्वेज में डब करनी शुरू की। फिर मुझे थोड़ी बहुत कहीं ना वो ना एक बहुत बड़ा बैरियर है बिटवीन बीइंग अ लैंग्वेज आर्टिस्ट एंड बीइंग अ हिंदी और इंग्लिश मास्टर फिल्म वॉइस आर्टिस्ट। तो उस बैरियर को क्रॉस करने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगा, बट अब आई कैन से दैट आई हैव बिकम अ सक्सेसफुल हिंदी इंग्लिश मास्टर फिल्म वॉइस आर्टिस्ट एंड नॉट जस्ट अ लैंग्वेज वॉइस आर्टिस्ट। उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज आई मुझे साउंड एंड विजन इंडिया से, where I started doing a lot of dubs for OTT shows and films. Okay, Sound and Vision. Yes, Sound and Vision से I have dubbed for a lot of Netflix shows. एक वो फिल्म आई थी ना, हार्ट ऑफ स्टोन, गैल गडो की, उसके जो विलन है, जो मिस्टर ग्रे प्ले करते हैं 50 शेड्स ऑफ ग्रे में, मुझे नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, उनके लिए मैंने हिंदी में डब किया था। सो ही इज द विलन ऑफ द फिल्म। तो दैट वाज वन ऑफ माय प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स। और सिकंदर खेर के लिए मेरी आवाज़ सेट हो गई, तो उनके 2 प्रोजेक्ट्स में मैंने सिकंदर खेर के लिए इंग्लिश में आवाज़ दी है। और अभी नेटफ्लिक्स पे एक शो आया है पिछले साल, चूना, उसमें चूना इज अ जिमी शेरगिल शो। यस, मैं एक और रिकॉल कर रहा था, शायद आर्या में भी आपने डब किया होगा। आर्या में नहीं किया, आर्या साउंड शायद नहीं किया था या क्या रीजन था। ओके। बट मैंने सिकंदर खेर के लिए किया पहले वो फिल्म में मोनिका ओ माय डार्लिंग। ओके। और फिर आई उनकी परी, टूथ परी। ओके। हाँ, तो इन 2 में मैंने सिकंदर खेर के लिए डब किया था। उसके अलावा व्हाट वाज आई आल्सो वाज मेंशनिंग अनदर सीरीज ना, हाँ वो चूना में मैंने अरशद वारसी के लिए इंग्लिश में डब किया। तो ओटीटी में और फिल्म्स को डब करने में बहुत मज़ा आता है। साउंड एंड विजन इंडिया के साथ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज देयर आर बंच ऑफ रियली अमेजिंग पीपल टू वर्क विद एंड वेरी क्रिएटिव एंड दे नो देयर जॉब्स रियली वेल। तो ना ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप ऐसे लोगों के साथ काम करें जिन्हें अपना काम बहुत अच्छे से आता है, ताकि सिनर्जी बैठ पाए। Right. So yeah, so OTT happened, and with regards to acting, honestly, voicing just came as a boon during the lockdown, because actors के पास तो काम ही नहीं था। और I was doing a show between the first and the second lockdown, but second lockdown के टाइम पे वो भी शो मेरा बंद हो गया, टीवी शो। So मैंने तो, और कमाल की बात मैं आपको बताऊं कि मैंने अपना जो कंडेंसर माइक है वो लिया था 2019 के धनतेरस के दिन, कि मतलब
कुछ ना कुछ आप मेटल का लेते हो, बर्तन लेते हो या सोना लेते हो। मैंने कहा यार माइक ले लिया आपने, और जेन्युइनली स्पीकिंग कोई पता ही नहीं था कि करना क्या है उसके साथ। बस मैंने माइक ले लिया, ऐसे ही एक विम हुई मेरी और मैंने माइक उठा लिया। और नवंबर 2019 से लेके मार्च 2020 तक मैंने शायद एक बार यूज किया होगा वो माइक। लेकिन उसके बाद आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन इमेजिन दिस सिचुएशन। और बहुत आई थिंक ये कभी होता है ना जैसे रैंडमली हम कोई डिसीजन लेते हैं, क्योंकि आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि जब लॉकडाउन हुआ था सब चीजें, मतलब आप अमेजोन से भी मंगा नहीं सकते सामान, कुछ नहीं सब कुछ बनता उस टाइम पे। एब्सोल्युटली। तो वो माइक मेरे लिए इतना काम आया ना कि मतलब आई वाज रेडी विद अ होम सेटअप इवन बिफोर अ होम सेटअप वाज इन फैशन, इन वोग। राइट। तो जैसे ही लॉकडाउन हुआ मुझे पहला कॉल आया कोऑर्डिनेटर का कि सर आप आईफोन से रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? आई सेड आईफोन क्यों, माइक से रिकॉर्ड करके भेजता हूँ। ही वाज सो हैप्पी एंड देन द वर्ड स्प्रेड लाइक फायर एंड आई थिंक विद इन द फर्स्ट 2 weeks ऑफ द फर्स्ट लॉकडाउन वर्क स्टार्टेड ट्रिकलिंग इन। एंड मेरे घर पे मैंने अपना छोटा सा सेटअप बनाया। कंडेंसर माइक के साथ बहुत मुश्किलें हुई क्योंकि वो बहुत आवाज पकड़ता है। एंड आपकी तरह ये पूरा पैराफर्नेलिया तब नहीं था मेरे पास। ये भी लॉकडाउन में बनाया। ये अलग कहानी है। मैं दिल्ली से जब अहमदाबाद शिफ्ट हुआ तो हमने घर से ये अलग से इसका सेक्शन ही बना दिया। तो यहाँ से मेरा पॉडकास्ट, वॉइस ओवर वगैरह सब यहीं से होता है। हाँ, सो या एक अपना वो सेक्शन होना बहुत जरूरी हो जाता है। Right, but right. Soon enough I started getting opportunities to record for audiobooks. Audible contacted audiobooks the team and I recorded audiobooks from home. अब audiobooks में तो पंगा ये था कि Audible की बहुत ज़्यादा strict guidelines होती हैं कि आप आवाज़ को filter नहीं लगा सकते और muddle नहीं होनी चाहिए, all of that. तो I struggled with my condenser, but that guy only again just came to me like a blessing. सिद्धांत पिंटो नाम है उनका, यहीं वर्ली में उनका स्टूडियो है। He suggested a dynamic mic to me, and पहली opportunity में मैंने एक dynamic mic खरीदा and one of my best investments ever. अब मैं आराम से रिकॉर्ड कर सकता हूँ। I've recorded over 1,000 voiceovers just between 2020 and now using this. Yes, dynamic. Can I know which particular microphone you have? I have two dynamic mics. दोनों Audio Technica के हैं। एक ATR 2005 है और एक है 2100 जो मैं 2100। yes, perfect। मतलब ये ऑडियो टेक्निका श्योर, ये तो एवरग्रीन। या आई रिमेंबर टेलिंग हिम सिद्धांत को कि ब्रो ऑडियो टेक्निका का एक माइक मिल, और वो तब तो लॉकडाउन के ऐसे हाल थे ना कि वो हॉट केक्स की तरह बिक रहे थे माइक्स। तो बैंड्रा में एक दुकान है जिनसे मैंने बात की थी एंड ही सेड सर अभी ये एक ही है 2005 मॉडल है, चाहिए तो बोलो। So I called him. I said, bro, ये एक मिल रहा है, ले लूं क्या? He said, take it or I will race you against. I will race you and I will buy it. Okay. ये तुम ले रहे हो या तो मैं ले लूंगा? I'll beat you to it. I said नहीं यार मैं ले रहा हूँ। So I got the mic, I got my setup done, and yeah, the rest is history. पिछले 4 सालों से तो ऐसा हो गया कि अब घर के बाहर जाकर रिकॉर्ड करने में लगता है कि क्यों जरूरत है यार, घर से रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। So, वो जो स्टूडियो जाने का जो होता है, जैसे ना अब लोगों का माइंडसेट ऐसा हो गया कि यार स्टूडियो आने की क्या जरूरत है। ऑफ कोर्स वो डबिंग असाइनमेंट्स और कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशंस होती है वो एक अलग चीज हो गई, बट जो वॉइस ओवर्स का काम होता है वो तो आप घर से रिकॉर्ड करके दे सकते हो। मोस्ट ऑफ माय क्लाइंट्स आर वेरी हैप्पी कि उनका भी स्टूडियो का खर्चा बच रहा है। मैं उनको क्लीन फाइल यहाँ से रिकॉर्ड करके नियर स्टूडियो क्वालिटी रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। सो इट्स अ विन-विन फॉर ऑल ऑफ देम। वी आर कटिंग कॉस्ट्स, कटिंग ट्रैवल टाइम, and the quality is near perfect. Yeah, it's all thanks to technology. Yeah, thanks to technology. I mean, and I take this mic with me everywhere. I record from my car when I'm, when I'm shooting. I always make sure I have a car with me and a good car. Santro में problem हो जाती है, छोटी गाड़ी होती तो acoustic treatment नहीं होती. Innova, I have a Altis. तो बड़ी गाड़ियों में they are well treated with acoustics and I think it works out pretty seamlessly. I've recorded hundreds of voiceovers just using my laptop and my mic in my car. Nice. Wonderful. It's great to know. And, further coming on this particular part, your acting journey, yes. पिछले जो 4-5 साल में, उस पे हम थोड़ी अभी और चर्चा कर सकते हैं। Yes. Acting, मुझे पता था कि मुझे हमेशा से सिर्फ एक्टिंग ही करनी है। Voicing came to me like a blessing. And voicing came to me, like I said, very, very naturally. So, but acting happened to me in 2021 when Major happened to me. उसके पहले मैंने टीवी शोज कर रखे थे, कुछ छोटी फिल्मों में काम कर रखा था या और बड़ी फिल्मों में छोटा रोल कर रखा था. But my first major breakthrough, I would say, was Major.
where I had a good character, and also the hero of the film, Adivi Sesh. He comes to me on one of the shoot days and just looks at me and says, "Bro, why have I not seen you more already?" And I told him, "No, I'm voicing and I did this TV show and now." And he just looks at me and says, "Bro, you're an actor, man. Just pursue more. Work harder. Look at you. You're an actor." So I said, "यार इतना बड़ा आदमी बोल रहा है तो करना ही चाहिए." Then I started working harder. Also, my fiance, she really pushed me to reopen my mind for an acting career. And then things started falling in place. I did Major, and then I did this web series called 3Cs, which is on Sony Live. Then I did this film called Sita Ramam, जिसने काफी waves बनाई थी. And then off late, though, yeah, there have been a few releases, and there are a lot of films in the pipeline. Like you just mentioned, Jamna Par abhi release hui hai meri. Jamna Par. Last year, no, earlier this year, we had this film called Bhama Kalapam 2 release in Telugu, also dubbed in Hindi. And Razakar release hui meri. अब आने वाले दिनों में मेरी अगली फिल्म है माँ काली. It's with Raima Sen. It's based on riots in current Bangladesh, but this is pre-independence. 1946 में, even before India got independence, there were major riots in what was then East Bengal. Yes, it later on became East Pakistan and now Bangladesh. Now Bangladesh, right. उन riots के बारे में unfortunately हम Indians को बिल्कुल नहीं पता है. सुना भी नहीं है किसी ने. मतलब वो कश्मीर जेनोसाइड के बारे में, कश्मीर फाइल्स के आने से पहले लोग जानते तो थे कि कुछ हुआ था कश्मीरी पंडित्स के साथ, बट वो फिल्म आने के बाद ज्यादा पता लगा. यस, इसके बारे में कोई जानता ही नहीं दोस्त, कोई नहीं जानता. मतलब मैंने 15 लोगों को बताया इस बारे में, शायद 2 लोगों ने बोला कि हाँ हमने सुना है. वो राइट, मतलब ऐसी काफी चीजें हैं जो शायद मुझे लगता है कि सिमिलर टू दिस इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कि इंटरनेट के आने से या धीरे धीरे करके कि ऐसे किस्से में हिस्टोरियंस अपने आजकल कितने पॉडकास्ट होते हैं, इस चीजें हमें पता लगती है कि ऐसी काफी चीजें हुई थी. राइट. कमिंग ऑन जमुना पार, आई एम लकी टू हैव द सेकंड कास्ट as you on my podcast. पिछला वाला जो पॉडकास्ट था वो बाबला खोचर सर के साथ था. ओके. वो उनका जो कैरेक्टर है, जो जितनी भी नरेशंस थी, जैसे जो ट्रेन की नरेशंस होती है जमुना पार में, इट वाज इन हिज वॉइस. दैट वाज अ कैरेक्टर इन इटसेल्फ. दिल्ली मेट्रो की जो आवाज उन्होंने निकाली है, यस, उसमें निकाली है. इतना गजब नरेशन था वो, बहुत प्यारा. और साथ में जो उनको जो कैरेक्टर था, लाइक द कैरेक्टर ऑफ राणा सर स्पेसिफिकली, उन्होंने प्ले किया था. I'll tell you a good story. I had first auditioned for Rana. Okay. So you were earlier. Okay. I had auditioned for Rana's character, but then they found me too young to be the contemporary of Varun Badola. Yes. And they said कि नहीं यार, इसकी दाढ़ी सफेद है, ठीक है, but then he looks much younger than Varun Badola, and we can't have him pit against him. And when I saw the show, I agreed that no, he did a much better job than I would have for the character. He suited the character very well, and I was lucky enough to get my character. Chetan Kedwai was a breeze. Yeah, I enjoyed playing my character, and so thankfully it's turned out well. So as per the decision, पहले आप जमुना पारी होने वाले थे, उसके बाद में you turned out to be the person from South Delhi. South Delhi. No, and personally telling, I of course it was amazing web series. सबकी performance अच्छी थी sir, including you. I loved that performance. और उसके अलावा मैंने personally along with my parents, we watched that because being a Delhiite, even I used to stay in there's a place called IP Extension Patparganj, and that comes in Jamna Par only. Yeah, Patparganj, yes. Yes, so हमें मतलब था कि यार वो पूरा लक्ष्मी नगर दिखाया उसमें के हिसाब से. Yes. So and me as a person, like मेरे क्या है ना, वहाँ पे लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन में गुरुद्वारा है. Over there, I used to record. Voiceover was a side hustle for me. तो वहाँ पे स्टूडियो में जाके मैं रिकॉर्ड करता था. Nice. So it was really special and amazing, and even seeing you and of course Raghu and everyone. बढ़िया था. रघु ने तो बहुत कमाल कहानियां सुनाई हमको. Raghu is a Jamna Pari. You should know this. Oh, I was not doing this. रघु पढ़ा है एक जमुना पार के कॉलेज में. Okay. And he said, अरे भाई ये तुमको क्या पता है जमुना पार के बारे में, मेरे कॉलेज में ऐसा होता था, वैसा होता था. And the stories are insane, man.
Okay. I said, this is straight out of a film. He said, no, films are straight out of here. यहाँ पर ऐसा Oh my होता है, वो God. फिल्मों ने कॉपी किया है. ये नहीं पता था मुझे, लगा कि ठीक है कैरेक्टर होते हैं, जैसे वहां पे शैंकी एक कैरेक्टर था, मेन जो कैरेक्टर कह सकते या हैं, तो उन्होंने तो ऐसे अडॉप्ट ही कर लिया था अपने अंदर लक्ष्मी नगर, वो जो एक हाँ. बिल्कुल हाव भाव पता नहीं, मैं तो देख के आई वाज अमेज्ड, Yeah, and it you know was from in wonderful different acting. yeah seriously, and the chemistry between you and everything, you know, overall it was Yeah. fab. और उसके अलावा अभी शायद आपने कुछ बताया एक और आप प्रोजेक्ट पे जो Yes, I have 3-4 projects coming up. Ma Okay. Kali is a film that hopefully will release in August, and I have another film called Tandel. It's a Telugu film where I am playing villain against Naga Chaitanya, Okay. and it's a very interesting true story again, based on something that had happened in 2016, if I'm not wrong, where a few Indian fishermen from Srikakulam, which is a district in Andhra, were caught in a storm and ended up in Pakistani waters. Okay. And they were arrested, and then they were there for a fairly long period, and they were finally rescued by diplomatic intervention. But what happened to them, and the entire story basically revolves around that incident. Fact meets fiction wala scene hai. But it's directed by a very able director called Chandu Mondetti. He Okay. had directed Kartikeya 1 and Kartikeya 2. And Okay. Kartikeya 2 was quite big. It had made a lot Yes, of yes, waves. yes. And yeah, that's hopefully going to come out by December. And there are 2 more projects. One is again very close to my heart. It's Gudachari 2. It's by the same actor called Advi Sesh, जिसकी मैंने अभी हाल ही में बात की थी, जो मेजर में मेरे साथ थे. And I remember मेजर में भी उन्होंने मुझे बोला था उसकी डब के दौरान that bro, we'll definitely work together. I'll write a very good character for you in my next film. I said, yeah, ठीक है, बोलते हैं लोग, होता है, जब देगा तब देखेंगे. And fair enough, I was in Europe, I remember, when I got a call from the director, and he said, sir, Advi Sesh wants you to play the villain of G2. And I was so happy, and I came back, I heard the story. It's a brilliant espionage spy thriller, and Okay. I'm playing the villain of that film. It's called Gudachari 2. Gudachari essentially means spy in Telugu. Spy. Okay. So that's a film that I'm looking forward to. And another one is Kalyan Ram's film. Kalyan Ram is Junior NTR's brother. He is also a big actor and also runs their own production house called NTR Arts. And this film is being made under the NTR Arts and Ashoka Arts banner. I'm playing the villain of the film again. We've already shot for a few days, and a few more days of shoot is pending for the same film. So yeah, these are 3 films that hopefully will be out by later this year or early next. Okay. And wish you all the best for that, of course. Thank you. एंड एक और चीज, जैसे आप कहीं आपका जैसे ओवरसीज या कहीं ट्रैवलिंग होता है, सो ऑफ कोर्स यू कैरी योर माइक, दिस पर्टिकुलर डायनेमिक All माइक, the time. सो वहां पे मतलब कहीं मे बी इन होटल रूम और कहीं भी आपको टाइम मिलता है, सो यू Yeah, रिकॉर्ड. See, I make sure that every hotel room I check into is acoustically well treated. So Okay. आपको कमरे देखकर समझ में आ जाता है, and any good place you check into will have decent acoustic treatment. आवाज echo नहीं होगी आपकी. बाकी तो आपकी DIY तो है ही, आपका blankets हैं, pillows हैं, हाँ वो और worst comes to worst आप हर जगह टैक्सी तो लेते ही हो. यस, आपके रिजॉर्ट में जब टैक्सी आए तो आप उसको रुका दो वहां पर, और वहीं पर तुरंत आप रिकॉर्ड कर दो और भेज दो उनको. आई यूज द राइट वर्ड इन सम केस, लाइक आई कैन से जुगाड़, हर मैं जगह बस कोई ना वही कोई. बोलने ही वाला था कि यस. ये तो बहुत जुगाड़ू काम मैं करता हूँ, और माय फियांसे गेट्स रियली फ्लस्टर्ड एट टाइम्स, कि मतलब संडे को भी काम आ जाता है तुमको, सैटरडे राइट 12 बजे एक कॉल आ रहा है, सर अर्जेंट रिकॉर्डिंग है, करेंगे, एंड शी इज फ्रॉम द कॉर्पोरेट, तो Okay. उसके समझ में नहीं आता ये. हाँ मतलब वो सैटरडे एक नाइट रात के 12 yes, बजे कौन काम करता है? मैं Weekend. काम करता हूँ. उनके लिए वीकेंड मैटर करता है, हमारे लिए तो जब काम हो तब काम है, जब नहीं है तो वीकेंड ही है. यस, राइट राइट राइट. So किसी का yeah. So wherever I am across the world, of the last couple of years, so I've been traveling a lot. I have another vacation coming up. I've just come back from one, and we're going for a quick Yeah. weekend again. इवन व्हेन आई टेक्स्टेड यू, जब हमारी पहली बार जब बात हुई, Yes, आई yes. गॉट योर नंबर फ्रॉम समर्थ, सो Yes. आप यू आर इन इटली राइट? I was in Spain. स्पेन, सॉरी स्पेन. Yes. So I was in Spain, और वहाँ पर भी I was carrying my mic and my recording setup. तो वहाँ से भी मैंने recordings करके भेजी हैं. अभी अगले हफ्ते कहीं और जा रहे हैं, वहाँ से भी करके भेजूंगा. So ये चलता है. work never stops.
that's the beauty of dynamic mic, कि साथ साथ में आप हाँ, दोनों चीजें simultaneously कर सकते हैं. absolutely, absolutely. Near studio quality sound with at least 30 to 40% of ambient noise cut off by default. And yeah, और क्या चाहिए आपको? Convenience of having a direct access to your laptop. कोई इसमें मैं वो गेटवे वगैरह नहीं लगाता. Okay. डायरेक्ट USB-C to USB-C कनेक्टिविटी है और हो जाता है यार. और उसमें जब आप लैपटॉप में रिकॉर्ड करते हो, सो मतलब क्या वो एक एक रॉ फाइल होती है थोड़ा एडिट करके, या जैसे आप DAW को यूज करते हो उसके साथ में? नहीं, I don't use any DAW. I directly send them clean files, clean raw files. Okay. And all the people that I've worked with so far have more or less been okay with it, they welcomed it. Okay. कि नहीं, ट्रीटमेंट हम अपने स्टूडियो में करवा लेंगे, आप बस NG टेक्स हटाकर भेज दीजिए, ब्रेथ्स निकालना और जो फाइनल वर्क है वो हम करवा लेंगे. साउंड इंजीनियर हमारा कर लेगा, जो भी हमारी मिक्सिंग होती है वो कर लेगा. बट आई सेंड देम क्लीन वेव फाइल्स and that works out 99% of the times. I've never had someone come back to me and say नहीं सर इसको आप प्रोसेस करके दीजिए. Although I do know a few engineers जो प्रोसेसिंग भी कर लेंगे मेरे लिए. I have that backup option ready, but never had to use पड़ी उसकी. Never had to use it so far. Okay, fine. ये नहीं सही है. And one more thing, मुझे लगता है जो ये सवाल या ये टॉपिक है, मेरे पिछले कई एपिसोड्स में मैंने इसके बारे में बात की है. Now as we talk about, जैसे आप ट्रैवल करते करते ये सब रिकॉर्ड भी करते हो, यू एबल टू सेंड द फाइल्स, ऑफ कोर्स वी हैव द फैसिलिटी, एवरीथिंग, ईमेल इज देयर, सब मतलब डिजिटल वर्ल्ड के आने से सारी चीजें बदल गई है, Absolutely. थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी. बट एक और चीज जो उभर के आ रही है, जो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन साथ साथ में एक इसको खतरे की तरह भी देखते हैं, दैट इज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. I knew where you were getting at. Yeah. So इसके बारे में how you look at this AI, artificial intelligence in terms of, मैं तो सबसे पहले वॉइसिंग की बात करूंगा. वॉइस एक्टिंग, आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए, टूल्स आ गए कि आवाजें आप मतलब जस्ट लाइक टेक्स्ट टू स्पीच हो गया, क्लोनिंग हो गया. इसके अलावा डब हो जाता है, आप मतलब कोई इंग्लिश में आपको जैसे वो वीडियो डालोगे आपको हिंदी में करके बता देगा वो. तो ये आप इसको किस तरह से देखते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर? यार आई थिंक ना एक चर्निंग प्रोसेस हर कुछ सालों में आता है, where existing technology gets outdated and you have to adapt to a newer medium, a newer piece of technology. In terms of filming अगर हम बोले तो पहले रील वाले कैमरा आते थे, फिर जब डिजिटल आया तो सबने बोला डिजिटल विल नेवर बी एबल टू रिप्लेस फिल्म कैमरा. फिल्म की बात ही कुछ और है. आज क्रिस्टोफर नोलन को छोड़ के और कोई नहीं यूज करता. फिर डिजिटल के बाद आपका 5D वाला आ गया, कहते हैं इतना छोटा सा कैमरा इतने बड़े कैमरा को कैसे रिप्लेस करेगा. आज लोग आईफोन पे फिल्में बना रहे हैं. सो प्रॉब्लम ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी खतरा है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने इससे के साथ अडेप्ट नहीं किया खुद को, वो खतरा है. यू कांट अफोर्ड टू जस्ट सिट बैक एंड थिंक दैट यू आर सेफ बिकॉज यू हैव बीन डूइंग दिस अ लॉन्ग टाइम. You need to be on your feet and keep adapting. Like how I remember I attended a lot, I saw a lot of podcast interviews during the initial lockdown where Mona Shetty from Sound and Vision India was interviewing other voice artists and educating people on how to set up your own home studio. And she said, existing artists are very scared or very not sure whether they want to set up their own home setups. कि ऐसा थोड़ी होता है यार, स्टूडियो में ही जाकर डब होती है, हम रुक जाएंगे. We'll wait till this passes and then we'll go back to studios. And the next thing 2 years go by before the studios can actually properly reopen. Yes. And those who were a little laid back had to really that they had a major setback. So you need to adapt. Now, how to adapt to AI, how to adapt to someone who is literally taking your job away is a big question. Yes. I know people who run this business of taking IPs on voices. Like they'll take the IP of a famous person's voice, they'll train their model, and then anyone can just say the lines in that particular person's style, and the voice will be masked on it. So it'll literally sound like that person is talking those words in that language. So imagine tomorrow if you have an IP of Amitabh Bachchan, and Bachchan ji can talk in Spanish, Hispanic, Russian, Hindi, Telugu, any language you want, and any words you want.
तो वो इम्पॉर्टेंट है समझना कि कितना रिस्की हो सकता है। आप किसी को भी अपना आईपी नहीं दे सकते ऐसे, बट उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आईपी क्रिएट कर पाएं, इतने बड़े या इतने प्रोमिनेंट आप बने हैं या नहीं। कल मेरी वॉइस का आईपी अगर मैं किसी को ना दूं, वो किसी और की वॉइस यूज कर लेगा। माई वॉइस इज नॉट अ ब्रांड। Specifically, what exactly do you mean by IP? मतलब अगर मैं इसको specifically for a layman to understand. IP is intellectual patent, right? Okay, intellectual patent. Intellectual property. My apologies. Your intellectual property is your voice. कोई लिखता है तो उसकी स्क्रिप्ट उसकी आईपी है, अगर कोई गाता है तो उसका गाना उसका आईपी है। तो आपकी आवाज का राइट अगर आप किसी को दे रहे हैं तो ये आप सोच समझ कर दें कि आपने पूरी जिंदगी के लिए अपनी आवाज उसको बेच दी है, और वो उस आवाज के साथ क्या कर सकता है और क्या करेगा ये शायद आपके हाथ में ना हो। बट उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि वो आपकी वॉइस ही चाहे और आपकी वॉइस के लिए एक अच्छा प्राइस दे। इतना इंपॉर्टेंट आपको बनना है, इतना इंपॉर्टेंट आपकी आवाज को बनाना है that he would want to approach you versus 20,000 other people. So I think as voice artists ये बहुत ही crucial time है हमारे लिए जहां पे churning हो रही है। And और those एक और उसमें क्या है ना, जैसे यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस ये थोड़ा डिफाइंड होना जरूरी है, बहुत जरूरी ये जरूरी है। और मैं एक और चीज के बारे में जैसे पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, आपने जैसे बताया अपने इंडिविजुअल अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करी। एक होता है कि सिंपल, सपोज आई एम अ क्लाइंट, आई नीड सम डॉक्यूमेंट्री वॉइस। मैं कोई सॉफ्टवेयर चेक करता हूँ और वहां पे मैं अपनी स्क्रिप्ट डालता हूँ, मुझे बना के दे देता है। लेट्स फॉरगेट अबाउट अ सेलिब्रिटी वॉइस, लाइक वो अच्छी खासी एक बैरिटोन वाली आवाज है। तो इससे कहीं ना कहीं वो ऑप्शन के लिए किसी वॉइस आर्टिस्ट को भी चूज करा जा सकता था, पर ये काम आप सॉफ्टवेयर करके दे रहे हैं। तो जैसा आपने एज यू राइटली सेड कि ये काम तो थोड़ा बहुत कम करेगा, और ये अभी इनिशियल फेज है इनफैक्ट एआई का। और एआई इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि मतलब अगर हमको लगे कि नहीं ये तो 5-10 साल तक कुछ नहीं कर पाएगा, आप गलत फहमी में। एआई विल टेक ओवर इन द नेक्स्ट 1 मे बी 2 years। आपके पास इतना ही वक्त है, आप कर लो जो कर सकते हो। आप फाइट मारो, आप खुद को इंप्रूव करो, आप इस मुकाम पर पहुंच जाओ कि आप किसी हद तक इररिप्लेसेबल हो सको, फिर चाहे वो आपकी आवाज का आईपी हो या आपकी आवाज खुद क्यों ना हो। राइट। बाबला खोचर सर, अब बाबला खोचर जी की आवाज यूनिक है, वो दिल्ली मेट्रो की आवाज निकाल सकते हैं। वो उनकी आवाज में जो कैरेक्टर है, जो बैरिटोन है, वो आवाज आपको शायद और लोगों के पास ना मिले, बहुत कम लोगों के पास मिलेगी। लेट्स जस्ट कीप इट दैट वे। तो अनलेस एंड अनटिल दे वांट जस्ट दैट स्पेसिफिक टोनैलिटी, they can go with anyone else or any other AI voice. You need to find some USP that you have, which an AI voice will not have. बिल्कुल। वो मतलब वो काम हम ही कर सकते हैं, वो और कोई नहीं कर, हम ही कर सकते हैं। एंड एज यू राइटली सेड, जैसे आपने बाबला खोचर सर का अभी जिक्र किया, उन्होंने तो जैसे जमुना पार सीरीज में जो मेट्रो की अनाउंसमेंट है वो की थी। एंड मैं एक और चीज चलो मैं बता ही देता हूँ, अभी लास्ट वाला जो इंटरव्यू जो अभी अब पब्लिश नहीं हुआ, इट्स नॉट लाइव, बट आई हैड द प्रिविलेज टू हैव मिस्टर शमी नारंग। ही इज द वॉइस ऑफ दिल्ली मेट्रो। ओह नाइस नाइस। तो आई कैन से, तो उनकी जो आवाज का जो टेक्सचर है, तो जैसा उन्होंने भी यही कहा कि मतलब ऐसा काम करो कि चाहे उन्होंने ये जिक्र किया इस बात का, चाहे एआई आ जाए, बीआई आ जाए, सीआई आ जाए, आपका काम आप ही कर सकते हो। आपका काम आप ही कर सकते हो, ये बहुत जरूरी है। While I understand कि एक एलिमेंट्री लेवल पर एआई पेनिट्रेट कर चुका है और शायद इससे और आगे भी जाए, बट नथिंग कैन रिप्लेस ह्यूमन ब्रेन एंड ह्यूमन क्रिएटिविटी। आई अंडरस्टैंड कि वो आप आज एआई को बोलेंगे कि राइट मी अ फिल्म अबाउट दीज 3 कैरेक्टर्स एंड ये प्लॉट ट्विस्ट चाहिए मुझे, तो वो आपको एक बेसिक स्टोरी लिख कर दे देगा, और हो रहा है। एआई इज क्रिएटिंग मूवीज, कहानियां लिखकर दे रहा है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सम अप करके दे रहा है, आपको फिल्में बना कर दे रहा है। लाइक लिटरली फिल्मोरा करके शायद एक ऐप है जहां पर आप बस एडिटिंग, यस, हाँ, नहीं, इट्स आल्सो क्रिएटिंग सीन्स, यस, मोंटाजेस आपको अगर फॉर डॉक्यूमेंट्रीज, सॉरी फॉर एक सोरा करके है, वो अभी ओपन एआई जिस पे काम कर रहा है। इनफैक्ट आप प्रॉम्प्ट देते हो, आप उसको एक सीनरी बताओगे, पीपल जो एग्जिस्ट नहीं करते, तो क्योंकि पास इन लोगों के पास इतना डेटा है, तो ये जगह जगह से ले लेके आपको वो क्रिएट करके दे देते हैं। शो मी अ विजुअल ऑफ अ गर्ल रनिंग इन टुवर्ड्स अ सनसेट इन अ फील्ड फुल ऑफ डेजीज,
अ गार्डन फुल ऑफ डेजीज, तो वो सीन आपको बना कर दे देगा, लड़की बना भाग के रही दे है देगा। सफेद और कपड़ा पहन के भाग और रही है। ये जो छोटे छोटे जो न्यूएंसेस है एआई के, हम कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, हमें वो पिक्चर बना के देता है, लेकिन कैसे अगर देखा जाए कोई स्टार्टअप हो, एक दुकान, उनको कुछ पोस्टर चाहिए तो उनका तो इससे काम हो गया। करेक्ट। वो किसी मॉडल को हायर करते, उसके लिए कैमरा वाला आता, मेकअप आता, इतने सारों का काम आपने एक चुटकी में फ्री में फोकट फ्री में, में, मतलब कैसे राइट वर्ड यूज बिल्कुल। करूंगा, आपने वो प्रॉम्प्ट करके बना लिया। वो हिंदी की पुरानी कहावत है ना, न हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा। बिल्कुल सही कहा। तो वो तो हो गया है सर, वो हो गया है। बेसिक लोगों के लिए एक बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पर तो ये काम आसान हो गया है एआई के थ्रू। और डेफिनेटली ग्राफिक डिजाइनर्स की तो बहुत बड़ी मात्रा में चोट लगी है इसकी। मैंने रिसेंटली मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, ग्राफिक डिजाइनर वाज किक्ड आउट ऑफ हिज जॉब सेइंग यू नो वी कैन गेट इट डन, excuse me, saying that we can get it done through AI. And he said, I applied in 16 other companies, and वहां भी all of them सेम। said, we don't need graphic designers anymore, we have AI. So, कुछ इंडस्ट्रीज में तो ऑलरेडी बहुत भारी चोट लग चुकी है, और इट्स कमिंग, you like it or not, it's coming. You can see the storm coming. इनएविटेबल। Just be prepared for it. It's inevitable. And वो जैसे वो थानोस ने बोला था that I am inevitable. लेकिन थानोस की चुटकी बजने से पहले आप चुटकी बजाकर कुछ कर लीजिए ना, आप आयरन मैन बन जाइए। डेफिनेटली। मतलब एक जैसे इसका परसेप्शन हो सकता है कि अपने आप को, ऑफ कोर्स, अपनी क्राफ्ट पे काम करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, और साथ में कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई भी करना, कि एक ही चीज पे आप कभी डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। आपको यू हैव टू लुक फॉर डिफरेंट ऑप्शंस। तो वो ये तो है that you need to keep upskilling yourself. That's what I believe in, that आप कोई ना कोई माध्यम से अपस्किल करते रहिए, फिगर आउट करते रहिए कि आप खुद को एज अ वॉइस आर्टिस्ट एंड इवन अदरवाइज कैसे सुधार सकते हैं, कौन से वर्टिकल्स में आप ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप कनेक्शंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। वॉइसिंग इंडस्ट्री इज so much about networking, about knowing the right people. Like I'll tell you this one thing that happened. I just happened to know this one gentleman in Hyderabad who is actually an American. He's an expat but speaks in Telugu. तो एक मुलाकात हुई छोटी सी उनसे, चाय पे चर्चा हुई, और he gave me one contact in America जो अपना एक ऑडियो शो बनाते हैं, and they wanted me to play a small taxi driver's character in that. और ये मैं आपको आज से आराम से 8-10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। एक छोटा सा मैंने कैरेक्टर किया, दे सेंट मी द मनी वाया पेपैल, आई वाज हैप्पी। अगले साल उनका एक और सीजन आया, थोड़ा बड़ा कैरेक्टर आया, वो कर लिया मैंने। नेक्स्ट थिंग यू नो, दे सेंट मी एन एंटायर एपिसोड टू कास्ट फॉर, डायरेक्ट, प्रोड्यूस एंड सेंड देम। दे लाइक दैट, दे सेंड मी 2 more episodes. एंड आप कहां से कहां पहुंच गए। मैं अमेरिका में मेरे कॉन्टैक्ट्स बन गए बिकॉज मैं एक आदमी के साथ बैठकर चाय पी ली। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स बनाइए, कीप ग्रोइंग योर लाइब्रेरी, कीप ग्रोइंग योर रोस्टर ऑफ पीपल, एंड मेरे हिसाब से तो जुड़ के मिल के साथ में चलेंगे तो ही होगा काम। वरना यहाँ पर लोग बहुत तैयार होते हैं ना कि किसी और का काम काट ले। हाँ। वो 10 में कर रहा है तो मैं 9 में कर लूंगा। ऊपर और जो सामने काम देने वाला है वो भी कॉस्ट कटिंग देखता है अपनी। हाँ, वो भी कॉस्ट कटिंग देखेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम एज ऑफ नाउ इन दिस वेरी क्रिटिकल टाइम, जैसे टर्मिनेटर में हमने देखा था दैट ऑल मेन मस्ट कम टुगेदर टू फाइट द मशीन्स। Yes. You can't fight them individually. So as this industry we need to come together and take a collective stand. आवा करके हमारी कमिटी है, एसोसिएशन ऑफ वॉइस आर्टिस्ट, तो वो ऑलरेडी काफी एक्टिवली इस पर काम कर रही है। वी आर हैविंग मीटिंग्स एंड डिस्कशंस एज टू हाउ टू कॉम्बैट AI and what are the rules and regulations that as a voice artist you should have before giving your voice for क्या बोलते हैं वो लोग उसको, computer learning, machine learning, which is nothing but just giving your voice to AI. So मेरे साथ भी एक बार हुआ था ऐसे, that recently a very big company had auditioned me to be the role of their to be the voice of their AI model. तो उनका बस ऐसा ही था कि वो 28 घंटे की रिकॉर्डिंग करेंगे और बाकी सब उनकी मशीन अपने आप सीख लेगी। हाँ। Which was earlier supposed to be hundreds of hours of content. अभी उनका बस इतना ही था, आप give us 28 hours of finished content, plain sentences, and our model will learn the rest. So I gave them a price estimate of not just those 28 hours of recording. It was for the perpetuity that you give your voice to.
तो कई लोग ना बड़े भोले होते हैं, बड़े नासमझ होते हैं इस मामले में, कि वो समझ नहीं पाते कि ठीक है यार, हम तो बस 28 घंटे काम कर रहे हैं, हमको नॉर्मली इतना मिलता, हाँ ये लोग हमको उसका 2 गुना दे रहे हैं या 3 गुना दे रहे हैं, तो हम तो बड़े खुशी खुशी चले जाएंगे। बट आपकी वॉइस जिंदगी भर के लिए गई, एंड वो लोग लिखवा कर ले लेंगे कि अभी आवाज हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब थोड़ा इसके बारे में भी अवेयरनेस बहुत जानना बहुत जरूरी है। वी नीड टू, लाइक आई सेड, वी नीड टू अपस्किल आवरसेल्व्स इन एवरी वर्टिकल पॉसिबल, not just understanding our craft but also understanding what it entails whenever you sign the dotted line. Definitely. And as you said 28 hours, तो मतलब अभी तो क्लोन करने के लिए तो सिर्फ 30 सेकंड चाहिए, तो 28 hours अगर किसी टूल को, सॉफ्टवेयर को पता लग गए तो आपके हाव भाव समझ लेगा वो तो पूरा आराम से। So right. These are tricky times ahead, and we don't have an answer right now. We don't have one clear answer कि भाई बुखार हुआ तो पैरासिटामोल लो. It's not as simple as that. ये जो नई हमारे सामने चैलेंज आकर खड़ी हुई है, इसका अभी तक पूरा सही सटीक जवाब नहीं मिला है, और आई थिंक इट्स गोइंग टू टेक अ वेरी कोलैबोरेटिव एंड क्रिएटिव एफर्ट फ्रॉम आवर साइड टू, आई वुडंट से कॉम्बैट दिस. It's not something we need to combat. We need to adapt. Man and machine need to learn to coexist. Otherwise, we will be stuck. We can't be stuck. We have to understand that AI is here to stay. And AI is evolving much faster than we are. And so that too in initial phase, right? And अभी तो AI का दौर शुरू हुआ है. एक टाइम पे humanoids पे काम हो रहा है कि जो में जो चलते फिरते रोबोट्स बनते हैं उसमें AI इंटीग्रेट होगा, वो कल चल पाएंगे, बोल पाएंगे. कुछ कितनी जगह पे तो ऐसे हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में, ऐसे देखा है कि जो बॉस है वो आपका रोबोट है, और वो बताता भी है. कोई अगर आपको बोलेगा यार मुझे आज ठीक नहीं है, तो अच्छा यार जाके घर पे आराम करो, तो जो एक ह्यूमन की तरह बिहेव करता है. तो पता नहीं क्या होने वाला है आगे जाके, तो ये नहीं पता. देखो यार, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि इंसान सिर्फ वी कैन ओनली रन एज फास्ट एज वी कैन. हमसे तेज चलने वाले, दौड़ने वाले और बहुत सारे जीव जंतु और मशीनें हैं. हम 20-25 की स्पीड पे दौड़ लेंगे, घोड़ा 40-50 की स्पीड पे दौड़ लेगा, एक गाड़ी 100, 200, 300 की स्पीड पर चल लेगी. लेकिन घोड़े के ऊपर बैठा हुआ इंसान ही होता है, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ भी इंसान ही होता है. इंसान ही होता है, राइट. चलाने वाला तो इंसान ही होता है. हाँ, तो ऐसा नहीं है कि घोड़े खुद से नहीं दौड़ सकते. माय अपॉलॉजीज अगर मैंने किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया हो, बट आपको घोड़े पर बैठना सीखना है. You need to learn how to ride a horse so that you can go faster. You need to learn how to drive so that you can go further fast, even faster. So just learn how to adapt, man. It's an upskill. It's a skill you need to learn. Horse riding is a skill. Driving is a skill. Learn how to control the machine. Learn how to control the beast. Yes, that's the right word. Yes. Right. So, sir, I think ये ऐसी चर्चा है, मतलब मन ही नहीं करता एंड करने का, मजा आ रहा है. So it was great to have you on this episode. Lovely your journey, voicing, overall acting, everything. और हमारी जाते थे फिर AI पे भी डिस्कशन हुई, और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके. And finally, wish you all the best for all your future endeavors. You're doing an amazing job every day. And आपकी आवाज जो है सुनने में, और that too अभी जिस तरह का सेटअप और आपकी आवाज, बहुत मजा आ रहा है. मतलब होता है ना, बस हम बात करते रहे, वो चीज है. एडिटर का काम बढ़ जाएगा फिर. आप जब चाहें हम फिर से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. I would love to chat with you again on your topics and spread more knowledge and learn more from you.